Okay, Raj, so let's start your interview for the Bihar Public Service Commission, BPSC, Yes, sir. for the post of assistant professor. Yes, sir. Okay, Raj, give the brief introduction. Sir, my name, first of all, good evening to all. My name is Raj Kumar. I belong to Lakhinsrai district. I did my graduation from Gaya College of Engineering, Gaya in Bihar, and I completed my post graduation from BIT Simri, Dhanbad. After that, COVID arrived. Then 6 months in COVID, we prepare for GATE and also prepare for assistant professor exam. And then after we joined a college in Bihar, college name is Government Polytechnic Lakhinsrai. And then currently I working as a guest lecturer in this college, Government Polytechnic Lakhinsrai में. अच्छा, अभी जहाँ आप जॉब कर रहे हैं ये एडॉप जॉब है? यस सर, ये एडॉक टाइप का जॉब है सर. बिहार में सर एडॉक अब नहीं आती है, अब वो गेस्ट के तौर पे आती है. इतनी गठता की पोस्ट के लिए. ओके, एक मिनट. राजीव मैं करता हूँ, चलो कोई नहीं. हेलो. हाँ सर. हेलो. यस सर. ओके, तो कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं आप वहाँ पे? सर वहाँ पे करेंटली अकॉर्डिंग टू सेमेस्टर सब्जेक्ट चेंज होते हैं. जनरली पावर सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क और इलेक्ट्रिकल मशीन, ये सब सारे सब्जेक्ट मैं वहाँ पे टीच करता हूँ. ओके, आपको क्या लगता है कि व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग डिप्लोमा स्टूडेंट और इंजीनियरिंग स्टूडेंट? Sir, basic difference is that maturity level in diploma student is less in compared to engineering student, because in diploma the student come from 10th level after entered in diploma college. But in case engineering college, the student mature, he will pass 12th, then enter in engineering college. So maturity level difference is main issue, and other thing is also understanding capacity in 10th student is less in compared to 12th student. Okay. That's it. So how would you change your teaching pattern if you are selected as assistant professor? Sir, teaching pattern almost it's the same, but it is more convenient in engineering college, because student get my point easily in compared to polytechnic college students. Okay. Acha, what was your MTech project? Sir, my MTech project name is Optimum Power Solution using meta-heuristic techniques. Using meta-heuristic techniques. Okay. So what was the purpose of that project and what do you have done in that project? Sir, the purpose of that, my objective of in this project is to optimize the transmission losses, and second objective is to improve the to improve voltage deviation in transmission line from one bus to other bus. Okay. So what was the basic criteria to reduce the transmission losses? So basic criteria is that to reduce transmission losses is if we reduce transmission line length. So in transmission, we know that
कि सर ट्रांसमिशन लाइन में सर जो रेजिस्टेंस होती है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम लेंथ ट्रांसमिशन लाइन का घटा दें तो वो रेजिस्टेंस वहां से लॉसेस कम हो जाएगी तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, बट इट इज नॉट फिजिबल बिकॉज सर अगर हम लेंथ को घटा देंगे तो फिर हम ट्रांसमिशन लाइन को यूज नहीं कर पाएंगे टू द फ्रॉम सेंडिंग इनटू डिस्ट्रीब्यूशन या कंज्यूमर के पास। इसलिए हम लोग करते क्या है सर कि हम लोग उसके वोल्टेज लेवल को बढ़ा देते हैं। सेंडिंग टू रिसीविंग वोल्टेज लेवल बढ़ाने से क्या होता है, मेरा लॉसेस वहां से डिक्रीज हो जाती है। तो सर ये मेरे लिए बेनिफिशियल है और मुझे लेंथ लेंथ भी ज्यादा इंक्रीज घटाने की जरूरत नहीं है, बल्कि लेंथ और इंक्रीज हो जाएगा अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो। अच्छा, I am here in my house. Here in my house, frequency is 50 hertz. यस सर। What will be the frequency of your house? सेम सर, इट इज सेम इन इंडिया ऑल इंडिया जितने भी सर फ्रिक्वेंसी होंगे एक फ्रिक्वेंसी पे ही वर्क करेगा। मेरा जितना भी हमारा लोड है, जो हमारा इक्विपमेंट डिजाइन हुआ है सिंगल फ्रिक्वेंसी पे ही डिजाइन हुआ है। अगर फ्रिक्वेंसी सेम नहीं होगा तो सर मेरा सिंक्रोनिज्म लूज कर जाएगा। क्योंकि हम लोग पावर जनरेशन जो भारत में कर रहे हैं, इंडिया में कर रहे हैं, वो 50 हर्ट्ज के अराउंड होता है। उसमें टॉलरेंस में हम लोग डाल देते हैं पहले तो 3% था बट अब शायद 1% हो गया टॉलरेंस वेटिंग फ्रीक्वेंसी। 1%? यस सर, इससे पहले सर 3% था, शायद अभी 1% तक आ गया है। हमारे सिस्टम में बहुत सारी चीजें इंप्रूव हुई है तो फ्रीक्वेंसी का जो टॉलरेंस है उसको सब रिड्यूस किया गया है। ओके राज, पढ़ाई के अलावा यस सर। क्या हॉबीज है और आपको क्यों लगता है कि आप इस टीचिंग प्रोफेशन के लिए सुटेबल है? क्योंकि सर टीचिंग प्रोफेशन मेरा जो है सर इंटरेस्ट स्टार्टिंग से रहा है। जब हम बीटेक में थे तो सर वहाँ पे हम लोग होम ट्यूशन देते थे बच्चों को, 10th लेवल बच्चों को होम ट्यूशन देते, 8 9 10th वाले बच्चों को होम ट्यूशन देते। फिर जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया देन हम लोग गेट का प्रिपेयर किए, वन ईयर गेट का प्रिपरेशन किए। उसके बाद फिर हम लोग मास्टर्स के लिए अप्लाई किए पोस्ट ग्रेजुएशन में। जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन में गए तो वहाँ पे भी सर मुझे टीचिंग का एक मौका मिला एज ए लैब असिस्टेंट। वहाँ पे हम काम करते थे कॉलेजेस में, क्योंकि मास्टर में सर ये होता है कि अगर आपको स्टाइपेंड मिल रहा है तो आपको कॉलेज के कामों में आपको हेल्प करना पड़ता है इन तो क्लासेस भी कभी कभी लिया करते थे, बट क्लासेस रेगुलर नहीं होता था। लेकिन लैब रूटीन के हिसाब से वीक में सर 2 दिन मेरा रहता था इलेक्ट्रिकल लैब। अच्छा, मेरे को एक चीज बताइए, अगर इफ यू हैव टू एस्टैब्लिश द लैब ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है ना, यस सर। यस हाउ सर। वुड यू प्रोसीड फॉर दैट? सर अगर मुझे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की स्टेब्लिश करना है तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या एक्सपेरिमेंट करना था उसके हिसाब से हम लोग एक सर लिस्ट प्रिपेयर कर लेंगे, एक्सपेरिमेंट लिस्ट। उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या मेरे को एपर्टस का रिक्वायरमेंट होता है उसका लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। फिर क्या क्या कितना स्पेस मुझे चाहिए वो प्रिपेयर करेंगे। देन हम लोग परचेज करेंगे और उसको स्टेब्लिश करेंगे। एक्चुअली बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब बेसिकली लो रेटिंग लैब होता है जनरली। उसमें हम लोग डीसी वोल्टेज को यूज करते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा वायरिंग वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल जो वायरिंग होता है होम का कॉलेजेस में उससे भी मेरा काम चल जाएगा, तो वायरिंग एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ी। बट हाँ मुझे अपैरेटस का रिक्वायरमेंट होगा तो उसके लिए मुझे परचेज करना पड़ेगा। ओके। अच्छा, मेरे को ये बताइए, घर के अंदर जो वायरिंग होती है यस सर। उसका आइडिया है आपको? यस सर। यस सर। एक सर्किट में कितने पॉइंट लगा सकते हैं हम, कितने पैरेलल में? सर वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का सर्किट है। अगर पावर सर्किट है तो सर एक सर्किट में हम लोग 10 पॉइंट्स लगा सकते हैं सर, आई थिंक, जो मुझे भी सर याद आ रही है। और लाइट में? और लाइट में सर थोड़ा सा कम यूज करते हैं शायद। उल्टा बोल रहे हैं जी आप। सर। सॉरी सर मुझे एग्जैक्ट अभी नहीं पता।
अच्छा, ELCB का नाम सुना है आपने? कैसे? CB ELCP? सर मैंने सुना है बट इसका फुल फॉर्म मुझे अभी नहीं पता है। अच्छा, ओके। अब सर टेक्निकल लेंगे, ठीक है? कैसे? हेलो राजीव, आर यू देयर? शायद कहीं भी। चलो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और मेरा आपसे है, ठीक है? यस आपकी सर। क्या क्या है? हॉबी सर? हम्म, एक्चुअली सर मेरी हॉबी सर क्रिकेट देखना है और दूसरा सर स्टडी करना और बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना सर, ये मेरा मेन हॉबी है कि हम बच्चों के साथ ज्यादा एक्सप्लोर कर पाते हैं अपनी नॉलेज को, या फिर बच्चों से कुछ एक्स्ट्रा चीजें सीख लेते हैं, तो ये मुझे बहुत पसंद है। ओके। कौन से बच्चे, छोटे बच्चे? नहीं सर, छोटे बच्चे बिल्कुल भी नहीं। जो 10th के बाद आई थिंक जो बच्चे मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं, फिर मुझे उसको सिखाने में बहुत अच्छा लगता है। कोई भी चीजें, जनरल लाइफ की चीजें या फिर नॉर्मल अच्छा, टीचिंग वाली। अभी जो एशिया कप हुआ लेडीज में, यस सर। वुमेन्स क्रिकेट टीम में, उसको यस किसने? सर। सर उसको इंडिया ने जीती है, मैंने उसका हाइलाइट्स देखा है, तो इंडिया ने जीती है। और श्रीलंका की जो वुमेन्स टीम थी बहुत कम स्कोर कर पाई थी, शायद 65 के अराउंड, 65 ही एग्जैक्ट सर। तो इंडिया ने जीती है सर। ओके, चलो अब टेक्निकल स्टार्ट करते हैं, ठीक है? व्हाट इज योर यस फेवरेट सब्जेक्ट्स? सर, आई प्रिफेयर टू टीच जनरली पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम और मशीन्स। अच्छा, यस सर, these are the subject to be I teach. पावर सिस्टम, कंट्रोल एंड मशीन। Yes sir. अच्छा, डिफाइन द। ओके। हाँ चलो, अब राजीव सर आएंगे टेक्निकल के लिए। राजीव। हाँ सर। ओके राज। हाँ, Yes sir. ओके राज, तो तुमने एमटेक कहाँ से किया? सब्जेक्ट क्या था तुम्हारा, डोमेन क्या था? सर एमटेक मेरा पावर सिस्टम से मैंने किया था, बीआईटी सिंदरी धन्यवाद सर। ओके। अच्छा एक चीज बताओ, एमटेक के बाद तुमने प्लेसमेंट प्लेसमेंट के लिए ट्राई नहीं की क्या था? नो सर, एक्चुअली एमटेक के जस्ट बाद ही सर, जैसे ही मेरा वहाँ एमटेक कंप्लीट हुआ उसके बाद तो कोरोना वाला केस आ गया, तो मैं पटना शिफ्ट हो गया था। और उस समय प्लेसमेंट, एक्चुअली सर वहाँ पे एक रूल है कि एमटेक में जो बच्चे होते हैं उनको प्लेसमेंट में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। अब ऐसा क्यों पता नहीं मुझे सर, लेकिन ऐसा होता था हम लोग के साथ, थोड़ा सा पार्सिलिटी, हम लोग को इन्वॉल्व नहीं किया जाता था ज्यादातर। अच्छा। हम्म। अच्छा एक चीज बताओ। जैसे स्ट्रिंग स्ट्रिंग होती क्या है? स्ट्रिंग, सर हम्म। स्ट्रिंग बेसिकली, जब बोलते हैं ना स्ट्रिंग एफिशिएंसी। ये सर स्ट्रिंग बेसिकली हम लोग यूज करते हैं इन केस ऑफ अंडरग्राउंड, सॉरी, इंसुलेशन, सॉरी, हम्म। जब हम लोग सर जब ट्रांसमिशन लाइन में जो यूज करते हैं इंसुलेटर्स, वहां पे सर हम लोग स्ट्रिंग का यूज करते हैं टू मेक ए फ्लेक्सिबल, टू कनेक्ट डिस्क। स्ट्रिंग बेसिकली एक रस्सी बोल सकते हैं जो मेटल प्लेट से बनी होती है, मेटल से, जो कि फ्लेक्सिबल होता है, मूवेबल होता है सर, उसी को हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। और स्ट्रिंग एफिशिएंसी सर कैलकुलेट क्यों करते हैं, ये सवाल था सर। स्ट्रिंग क्या यूज किया हुआ? जाता है सर इंसुलेटर में, स्ट्रिंग यूज किया जाता है सर इंसुलेटर में। हम्म। तो इंसुलेटर कितने टाइप के होते हैं? सर इंसुलेटर बेसिकली 3 टाइप के होते हैं सर, पिन टाइप इंसुलेटर, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर, या उसी को हम लोग सर सेकेंड टाइप इंसुलेटर भी बोलते हैं। और तीसरा मेरा जो होता है वो डिस्क टाइप या सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। अच्छा एक टर्म डिस्क, आता है क्रीप फैक्टर, इसके बारे में पता है?
creep factor in terms of sir power system. पावर सिस्टम में Creep factor. No sir, अभी मुझे नहीं ध्यान. क्रीप फैक्टर इन ए कंडक्टर, Creep factor in a conductor. No sir, मेरे को अभी सर ध्यान में नहीं आ रहा. नहीं पता। अच्छा एक चीज बताओ, Yes, sir. स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? सर स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए जो सर m जो होता है मेरा, जो डिनोमिनेटर में होता है m, एक्चुअली वो रेशियो होता है मेरा मेटल कैपेसिटेंस बिटवीन मेटल टू जो टावर होता है और बिटवीन डिस्क. तो m को सर अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो मेरा एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगा. दूसरा सर तरीका क्या हो सकता है कि जो बॉटम का जो वोल्टेज होता है, मैक्सिमम वोल्टेज क्या होता है हमारा, जो लोअर डिस्क होता है मेरा, जिससे मेरा कंडक्टर कनेक्ट होता है, उसका वोल्टेज हाई होता है. तो उसको अगर हम लोग कंपनसेट कर पाए, उसको हम लोग कम कर पाए तो यस एफिशिएंसी बढ़ जाएगा. गार्डनिंग का क्या इस्तेमाल, गार्डनिंग का क्या यस इस्तेमाल होता है स्ट्रिंग एफिशिएंसी में इम्प्रूव करने सर में? गार्डिंग, यस सर गार्डिंग बेसिकली यूज किया जाता है टू सर गार्डिंग बेसिकली यूज करते हैं हम लोग टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ across insulator, uniformly dielectric strength across insulator. Yes sir, dielectric कंडक्टर की stress है sir. Yes डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और स्ट्रेस दोनों yes क्या sir, होते हैं? dielectric strength और dielectric stress. Yes sir. Sir maximum electric field with a strained conductor is called dielectric strength of that conductor. यस सर. और स्ट्रेस सर उस कंडक्टर पे जो स्ट्रेस आता है डाइलेक्ट्रिक के वजह से सर, उसको हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस. सॉरी डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक स्ट्रेस, स्ट्रेस, अच्छा सॉरी इलेक्ट्रिक स्ट्रेस. हाँ इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस. एक चीज बताओ, ये जो हम सैग पढ़ते हैं उसमें क्या इलेक्ट्रिकल Yes, स्ट्रेस sir. की कोई इम्पोर्टेंस या इम्प्लीमेंटेशन होती है? सैग में सर नो सर, सैग कंडक्टर क्या है, कंडक्टर में वो टेंशन क्या है, लेंथ क्या है, वो सब चीज हम लोग साइड में डिस्कस करते हैं. डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस. तो तुम्हारा एमटेक सीरीज क्या था? सर मेरा एमटेक प्रोजेक्ट टाइटल, हम्म सर मेरा एमटेक प्रोजेक्ट टाइटल था ऑप्टिमम पावर सॉल्यूशन यूजिंग मेटा हेरिस्टिक टेक्निक. इसमें क्या था, इसके बारे में कुछ बताओ, ब्रीफली बताना. यस सर. ओके सर, मेटा हेरिस्टिक मतलब होता है कोई वेरिएबल टेक्निक जिससे हम किसी सिस्टम को या किसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम लोग मिनिमाइज कर सकें थ्रू दैट टेक्निक. अब सर इसमें बहुत सारे इलस्ट्रेटिव टेक्निक होता है जो प्रोग्रामिंग बेस्ड होता है, कोडिंग बेस्ड होता है. जैसे मान लीजिए एक्चुअली पावर सिस्टम में क्या होता है सर, बहुत सारे नॉन लीनियर इक्वेशन आ जाते हैं. तो नॉन लीनियर इक्वेशन को हम लोग सर मैथमेटिकली सॉल्व नहीं कर सकते हैं. उसके लिए हम लोग सर यूज करते हैं प्रोग्रामिंग मेथड्स. उसी में सर एक टेक्निक्स जो रिसेंटली नेचर इंस्पायर्ड टेक्निक है जो हम यूज किए हैं इन माय प्रोजेक्ट इज कुक्कू सर्च एल्गोरिदम टेक्निक्स. कुक्कू सर्च एल्गोरिदम टेक्निक्स. अब बेसिकली इसमें सर होता है क्या है कि हम लोग सर कुक्की का जो कुक्कू सर वर्ड है उसके बिहेवियर को सर हम लोग स्टडी करते हैं. तो स्टडी करने पे मुझे ये पता चलता है कि कुक्कू एक फैसिनेटिंग वर्ड है जो कि बोरोड पार्टिजम को फॉलो करता है. यानी कि सर कुक्कू एक ऐसा वर्ड है जो कि अपना एग खुद अपने नेस्ट या अपना घोंसला खुद से नहीं बनाता है, बल्कि दूसरे स्पीसीज वर्ड या फिर होस्ट वर्ड में सर वो अपना एग को ले करता है और वहीं पे सर उसका हैचिंग होता है. तो लेकिन सर प्रोबेबिलिटी ये है कि वो उसका बेस्ट नेस्ट कहाँ पे मिलेगा. तो इसके लिए सर हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग और अदर टेक्निक्स में हम लोग क्या करते हैं,
लोकेशन को यानी पोजीशन को अपडेट करते हैं। अगर सपोज कीजिए x1 में नहीं मिला तो x2 में जाएगा, फिर वो नंबर ऑफ इटरेशन मेरा बढ़ते जाएगा। बट लेकिन सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम ये हो जाता है सर कि जो हम लोग होस्ट वर्ड में अपना एग कुक्कू जो अपना एग ले करता है, मतलब उसमें डालता है एग, तो अगर मान ले अगर कुक्कू अगर जो होस्ट स्पीसीज है अगर उस एग को डिस्कवर कर लेता है यानी कि पहचान लेता है सर, तो उसके पास दो ऑप्शन है। या तो सर उस एग को उस नेस्ट से जो उसका अपना नेस्ट है उससे उसको बाहर फेंक देगा तो वो खत्म हो गया यानी कि किल हो गया, एक एबेंडन हो गया। या फिर दूसरा तरीका दूसरा पॉसिबिलिटी ये होता है कि सर वो एग को उस नेस्ट में ही छोड़ दे और वो अपना नया नेस्ट न्यू नेस्ट बिल्ड कर दे नियर टू द ओल्ड हो जो पहले था उसके बगल में वो नया घोंसला बना ले। तो इसी में सर हम लोग एक प्रोबेबिलिटी डिसाइन क्योंकि सर ये प्रोबेबिलिटी है ना कि उसमें वो फेंकेगा या डिस्कवर कर लेगा, मुझे ये एग्जैक्ट नहीं पता है ना, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी डिसाइड करते हैं कि 0 से 1 के बीच चांसेस है कि एग को डिस्कवर कर लिया और वो फेंक दिया। फिर सर इसके लिए हम लोग जैसे सर हम लोग न्यूटन रेफसन में एक इक्वेशन ड्राइव करते थे टू अपडेट नेक्स्ट इटरेशन, तो हम लोग इसके लिए सर एक टर्म्स यूज करते हैं। इक्वेशन सर वो होता है मेरा एक्स आई टी प्लस 1 बराबर, यहाँ पे टी क्या सर नंबर ऑफ इटरेशन है। ठीक है ठीक है ओके बराबर राज, एक्स। एक चीज बताओ। हाँ सर। राज हाँ सर। ओके राज एक चीज बताओ, इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है इन द फ्यूचर डिफरेंस? यस सर। हाँ इसका इम्प्लीमेंटेशन ये है कि सर हम लोग इसको यूज करते हैं टू ऑप्टिमाइज ए फिटनेस फंक्शन। जो भी हमारे स्टैंडर्ड टेस्ट फंक्शन होते हैं या जो भी मेरे जो इनइक्वालिटीज है पावर सिस्टम का या इक्वालिटीज फंक्शन है उसको पहले हम लोग ऑप्टिमाइज करके देखते हैं कि वो इक्वालिटीज को फुलफिल कर रहा है ना या वो टेस्ट फंक्शन को पास कर रहा है। तो जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है सर कि मेरा सब्जेक्ट का टाइटल जो इनटेक का जो मेन ऑब्जेक्टिव है सर टू रिड्यूस ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस, यानी कि जो ट्रांसमिशन लाइन में जो लॉस हो रहा है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक उसको कम करना। ओके ओके राज ओके यस सर। लिसन, मेनली ट्रांसमिशन लाइन लॉस। अब तुमने बताया था डेंसिटी फंक्शन, ये बताओ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यस फंक्शन सर। क्या होता है, इसको हम कहाँ यूज करते हैं? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हम लोग सर यूज करते हैं सर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हम लोग ये सर मैथमेटिकल एक स्टैटिक्स में हम लोग सर इसको यूज करते हैं। मैथमेटिकल एक तो जब हम लोग रैंडम वेरिएबल का एनालिसिस करते हैं उसमें आता है सर प्रोबेबिलिटी। क्या सर? अच्छा एक क्वेश्चन बनाओ। यस सर। तुमने अच्छा तुम्हारे साथ 3 स्टूडेंट हैं राइट फॉर द सेम यस सर। पोस्ट, 1:3 की कॉल आई है, यस सर। ठीक है? और मान लेते हैं कि एक की प्रोबेबिलिटी जो है इट इज 1/3, यस सर। प्रोबेबिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, यस सर। ठीक है? तो यस एक चीज बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट एटलीस्ट टू विल बी सेलेक्टेड? यस सर। तो इसको सर हम लोग निकाल लेंगे। एक की सर 3 मेंबर मेरे है को ना इसमें। मेरे को बस ये बताओ कि प्रोबेबिलिटी के किस फंक्शन से इसको हम निकालते हैं? तो सर इसको हम लोग जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है सर उससे हम लोग निकालते अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन, एक चीज हैं। बताओ यस सर। यस सर। कि एक टर्म आती है सर्किट ब्रेकर में जीरो यस सर। स्विचिंग स्पीड या जीरो करंट स्विचिंग, इसको समझाओ थोड़ा, ये होता क्या है, कहाँ यूज करते हैं इसको हम, किस पर्पस के लिए? जीरो करंट स्विचिंग हम्म सर मुझे ये डबलिंग इफेक्ट क्या होता है? हाँ यस सर डबलिंग इफेक्ट बता सकते हैं सर। एक्चुअली जब हम लोग एसी करंट का एनालिसिस करते हैं तो सर उसमें एसी करंट जो होता है वो 2 कंपोनेंट से बना होता है सर। एक को बोलते हैं डीसी और दूसरे को बोलते हैं सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स, ठीक है? तो सर जब जब हम्म मेरा एक कंडीशन आता है सर जब अल्फा बराबर थीटा हो जाता है तो सर वहां पे सर करंट का वैल्यू ना दुगना हो जाता है, यानी कि जो आई हो जाता है वो 2 वी एम बाई एक्स हो जाता है।
तो उस करंट के दुगना इफेक्ट को ही हम लोग बोलते हैं डबलिंग इफेक्ट। हम्म, यस सर, यस सर, डबलिंग इफेक्ट किस लिए होता कैसे? किस लिए होता किस लिए? डबलिंग इफेक्ट होता किस लिए सर? सर एक्चुअली उसमें ये होता है ना कि डीसी ऑफसेट करंट और सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल करंट सर दोनों सेम हो जाता है, वी एम बाई एक्स और वी एम बाई एक्स, तो दोनों का सम की वजह से सर करंट दुगना हो जाता है। यस सर। अच्छा राज, देखो यस सर। इंटरव्यू में जब भी जाओ कुछ भी ऐसे यस ऐसे, सर। ऐसे टर्म ना बोलो इसके बारे में कंप्लीटली नॉलेज ना हो। जब मैंने एक्चुअली बोला सर प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए तो ब्रीफली, ठीक है सुनो, सर तुमने एक्चुअली ऐसे ऐसे हम लोग टर्म बोल दिए कि अगर प्रोबेबिलिटी वहां से फंक्शन हम क्वेश्चन, लोग यूज नहीं करते, वो यूज ही नहीं हम लोग करते, वहाँ पे वहां रेंडम से वॉक हम अगर, लोग यूज करते हैं, एक फंक्शन होता है। नहीं नहीं मैं पूछ रहा हूँ, एक तो मैथमेटिक्स में तुमको जाना नहीं है, ठीक है, मैथमेटिक्स से यस क्या सर। है क्वेश्चन, अगर प्रोफेसर चाहे तो यस मैथमेटिक्स के सर। क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे पूछ सकते हैं जो तुमको मालूम भी ना हो, ठीक है, तो ऐसे यस टर्म सर। इस्तेमाल ना करो, इट इज बेटर। और जितना यस शॉर्ट सर। एंड ब्रीफ हो सके अपने प्रोजेक्ट को समझाने की कोशिश करो। यस सर। ओके, एक्चुअली सर मेरा ऐसे जो प्रोजेक्ट है ना, जिस तरह से तुम एक्सप्लेन कर रहे हो, यस हाँ, सर, नहीं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, तुम इतना अगर कोडिंग एक्सप्लेन बेस्ड करोगे है ना तो सर वो प्रोजेक्ट। वो तुम्हारी इंटरव्यू, तो उसके बस ये बताओ कि प्रोजेक्ट ये था और उसका इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से हुआ था। अगर वो फिर से पूछे कि इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करो तो फिर एक्सप्लेन करो, वरना कोई, मतलब वरना कोई जरूरी नहीं है हाँ एक सर। चीज को समझाने की, ठीक है। तो सर यहाँ ये बोल और सकते थोड़ा हैं, यहाँ पे पाँच ये टर्म बोल में, सकते हैं कि सर यहाँ, हम्म, सर यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि जो सीएसए टेक्निक से हम लोग यूज करते हैं, तो मिनिमाइज ऑप्टिमाइज फिटनेस फंक्शन एंड हाँ फिटनेस फंक्शन इज माय ऑप्टिमाइजेशन बस, ऑब्जेक्टिव, हाँ बस, एंड फिटनेस फंक्शन इज हाँ माय हमारा ऑब्जेक्टिव, काम सो जैसे ये है कि, हाँ, यस सर। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक से हम ट्रांसमिशन लाइन की इम्प्लीमेंटेशन और लॉसेस। फिजिबिलिटी को बढ़ाते हैं, यस सर। इतना ही बोलना है, सर इसका एक ठीक चीज है। और था, एक सवाल था और सर मेरा, हम्म, सवाल ये था सर कि इसका रियल टाइम एप्लीकेशन क्या वहाँ पे पूछा जाएगा कि कहाँ पे हम करेंगे यूज, तो इसमें क्या बोलना है सर कि हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के लॉसेस में कर सकते हैं या सब स्टेशन? आई एक्स, लॉसेस के बारे में बोल सकते हो। आई एक्स का नाम सुना है? हेलो राज। आई एक्स। यस सर। आई, इंडियन आई। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, यस सर। उसमें रियल टाइम एप्लीकेशन होता है टू ऑप्टिमाइज द पावर ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। यस सर। कि सर वहाँ पे मिल जाएगी ना? ठीक। हाँ, मतलब रियल टाइम एप्लीकेशन यही है कि ऑप्टिमाइज करना, कि आप लोड एंड पे सोर्स एंड तक पावर पहुंचाना विद मिनिमम लॉसेस, यस सर। ठीक है ना, यही है ना ऑप्टिमाइजेशन का मतलब, यस सर। ठीक है। और आईएक्स में क्या होता है, आईएक्स में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि लोड डिमांड कहाँ से है और आपके पास सोर्स कितना है, ठीक है। ओके सर। अब वो उस लाइन को ऑप्टिमाइज करते हैं कि इस पर्टिकुलर लाइन से हम इतनी पावर ट्रांसफर करेंगे कि उस पर्टिकुलर एरिया में विद विद मिनिमम लॉस उसका वहां पे की ऑप्टिमम पावर उसकी चली जाए, ठीक है। यस सर। तो आईएक्स के थ्रू करते हैं, ठीक है ना, पावर। और ये जो पोस्को करता है आजकल वो, ठीक है। तो पोस्को सर। ये है आपका उसका, यस सर। ठीक है। चलो वो तो बहुत सारी चीजें डिटेल में पूछने के लिए, वो तो अभी ये पूछेंगे नहीं आपसे, ठीक है। लेकिन जो सर जी ने सर। बोला है कि कोई भी चीजें ऐसी ऐड नहीं करनी है जिनको आप एक्सप्लेन ना कर, ठीक है। एक्चुअली सर वो हम लोग यूज नहीं करते हैं अपने प्रोजेक्ट, हम लोग यूज करते हैं जो एक फंक्शन होता है लिमिट फ्लाइट, वो रैंडम वाक पे बेस्ड होता है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी सर मैंने नहीं बोला था, बट हो सकता है निकल गया फ्लो में। चलो कोई बात नहीं। हाँ राजीव, आप और फर्दर दे सकते हैं फीडबैक। हाँ तो जैसा सर ने बताया था बस, तो इसकी यस सर। इम्प्लीमेंटेशन और जो सर ने बताया
बाकी तुम्हारा पार्ट सही है। यस और पॉजिटिव टर्म प्रोटेक्शन पे एक बार कवर मारो तो वीक है तुम्हारा। सर, मैंने जब मैंने पढ़ा था बट सर जब मैंने कॉल नहीं किया था। जीरो जीरो स्विचिंग जब बोला तो जीरो स्विचिंग क्या होती है, तुमने क्या बोला जीरो स्विचिंग के बारे में, एक बार देखो उसको। ठीक है सर, मैं देखूंगा सर। अगर जीरो स्विचिंग पता नहीं है तो बताने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं पता है तो सॉरी सर करके आप रुक सकते हो। हाँ, गलत ये अटेम्प्ट नहीं तुमने था। कुछ और यस ही सर। बोल दिया। उससे क्या होता है कि इंटरव्यू बर्बाद करने के लिए सबसे आसान चीज है कि तुम झूठ बोलना शुरू कर दो। नहीं सर, मेरे को नहीं पता था तो मैंने बोल दिया कि सर मुझे नहीं पता अभी। ठीक है, झूठ अगर बोलोगे तो इंटरव्यू वहीं बर्बाद हो जाएगा। बाकी बात तुम्हारा सही है, और सर बताएंगे तुमको एचआर। हेलो राज, यस सर। एक देखो इस चीज पे गौर करना। आप ना थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, आगे पीछे टू एंड फ्रो मूव कर रहे हैं आंसर करते हुए, ठीक है ना? बी स्टडी एंड बी कॉन्फिडेंट। ओके सर, ओके सर। हिलना नहीं है, ठीक है? सामने ठीक है देखना, सर। सामने देखना। अभी तो हम कैमरे पे है भी नहीं, ठीक है? तो आपको सीधे स्ट्रेट, और वो है बोलने का तरीका आपका ठीक है, आवाज ठीक है, क्लियर है, वो सब, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको लगा कि आप थोड़े से, मेरे को क्योंकि आगे पीछे मूवमेंट या जो भी होता है थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंस का निशानी है, भले ही अंडर कॉन्फिडेंट ना हो आप, ठीक है? तो ये एक ओके नेगेटिव, इसको आपको स्ट्रेट रहना है, ठीक है? सर। वहाँ एक और सवाल था सर, वहाँ पे सर अब अभी के समय में सर जो फीडबैक मिला है इसी वाले बच्चों से, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों से, वहाँ पे सर अब रेंडमली सवाल पूछा जा रहा है। टॉपिक सर प्रिपेयर करके जाना सही है या फिर नॉर्मल कुछ भी पढ़ाने के लिए वहाँ पे बोला जाता है? प्रिपेयर करके जाइए। देखो वो तो देखो, यही तो होता है इंटरव्यू, ठीक है ना? 80% आपकी यस सर। प्रिपरेशन है, 20% आपका लक है, ठीक यस है? सर। 80% तो यस प्रिपेयर करोगे ना आप, 20% जो लक है वो बाद में देखा जाएगा, यस सर। यस सर। ठीक है ना? तो इसीलिए इस चीज को वो रैंडमली कुछ भी पूछ सकते हैं, आप अपने 2-3 सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करिए, ठीक है? सर यस ने सर। जो टेक्निकल पे उसमें वो उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। यस कंट्रोल सर। यस सर। में वो जरूर कंट्रोल, क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन से क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, ठीक है ना? यस सर। पावर सिस्टम का मेन ही वो है, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव ही कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है? यस सर। हाँ, और जो आपका एमटेक में पढ़ाया जाता है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ये सिस्टम, वो आपको वो भी पूछ सकते हैं, वो तो एक थियोरेटिकल पार्ट है, वो पूछा जाएगा आपसे, ठीक है? यस सर। वैसे और एक्चुअली सर क्या, मेरा जो प्रोजेक्ट है सर कोडिंग बेस्ड है। मैटलैब कोडिंग उसमें होता है, जो भी लॉजिक हम बोल रहे थे उसका कोडिंग प्रॉपर तरीके से होता है, और उससे फिर हम लोग एक कन्वर्जेंस कर्व मिलता है, उसी को यूज करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए। तो सर उस क्या वहाँ पे कोडिंग पूछा जाएगा सर या फिर? कोडिंग नहीं पूछा जाएगा, उसमें आपका एक मॉडल तो होगा ना पावर सिस्टम का। नहीं सर, कोई मॉडल नहीं होगा उसमें सर, कोडिंग बेस्ड है ना। हम लोग सिर्फ डाटा बेस्ड काम होता है, जैसे स्टैंडर्ड जो IEEE का जो बस सिस्टम है, 13 बस, 14 बस या हाँ तो, फिर 57 बस, अरे उस यार पे आप काम किया हुआ। फिर बात नहीं समझ रहे हो। 13 बस, 14 बस, 15 बस, ये मॉडल ही तो हो गया है पावर सिस्टम का। बस किस में होती है? पावर सिस्टम में ही तो होती है। बस का मतलब सब स्टेशन, जहाँ पे बस बार होती है वहां सब स्टेशन होता है, यस ठीक है? सर। इन सब स्टेशन के बीच में पावर फ्लो होनी है, उसको आप ऑप्टिमाइज कर रहे हो, वही तो मॉडल यस हो सर। का, जो बस वाला हुआ। तो यस सर। पहले यस बात सर। सुनो और फिर समझो क्या चीज बोल रहे हैं, ठीक है ना? तो ये जो यस जो सर। ये आपका जो 14 बस, 13 बस, या आप 40 बस, जितना भी सिस्टम बना रहे हैं, ये आपका एक पावर सिस्टम हो गया। बस मतलब सब स्टेशन, क्योंकि सब स्टेशन में बस होती है, और उन्हीं के बीच में यस सर। पावर फ्लो करना है आपको, ठीक है ना? ऑप्टिमाइजेशन ऑफ यस पावर। सर। व्हाट योर माय पॉइंट, ठीक है ना? तो यस वो सर। बोलना कि कोई मॉडल नहीं है, मॉडल तो होता, बिना मॉडल के आप कोडिंग किस चीज की कर रहे हो, यस सर। ठीक है? यही मॉडल होता है कि बस मतलब सब स्टेशन, ठीक है ना? अच्छा, चलो मेरे को सबसे बेसिक क्वेश्चन बताओ, इनफाइनाइट बस क्या होती है? सर इनफाइनाइट, इट इज दैट बस है voltage and frequency is constant. और स्लैक बस? स्लैग बस सर हम लोग यूज करते हैं एज ए रेफरेंस बस इन पावर सिस्टम,
to compensate losses. तो ये जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। चलो Yes, sir. ओके, गुड लक, ऑल द बेस्ट। लेकिन ये मत